Welcome everyone, welcome back to the channel and welcome to Clarity for Sure. Today's session is about UPSC prelims examination of 2020 and 5. So as you all know, UPSC has recently conducted its UPSC prelims examination for the year 2020 and 5. So in this session we will be discussing all the important questions that appears in the exam related to banking and finance. Fine, and these questions are very important for your upcoming RBI examination. So let's start out today's session with very first question, that is related to investments. With reference to investments, consider the following: bonds, hedge funds, stocks and venture capital. So how many of the above are treated as alternative investment funds? This is our question. How many of the above are alternative investment funds? So let me tell you one thing, I am not here to tell you the correct answer of these questions because many organizations have already done so, but I am here is to tell you the most rational and most logical way to counter these questions. Fine. So let's start with very first question. As you can see, here is the words which are being used here are alternative investment and funds. So even though you don't know what is alternative investment fund, it is a privately pooled funds used for alternative way of investment. So even you don't know the definition of alternative investment fund, you can still solve this question. Let me tell you how. See, first thing, it is talking about some alternative type of investment, obviously as the word states itself. So there are two options, that is bonds and stocks. So as you guys all know, these are the most traditional way of investments. So how can be they included in alternative investment funds? Obviously not. They are the most traditional and the most common way of investment. Anyone who are not preparing for any type of examination, they must be knowing that these are the most traditional way of investment. So they are definitely not included in alternative investment fund. Fine. So you must eliminate first and the third option, that is bonds and stocks. Fine. So next thing you should focus here is venture capital and hedge funds. So you must be knowing that alternative investment funds include three categories, that is category 1, 2 and 3. Fine. So category 3, the venture capital is in category 1 of the alternative investment fund, which largely invests in small enterprises, small and medium enterprises, startups and new enterprises as well. Fine. So these are the investment which are generally done by startups. So it is included in our category 1 of the alternative investment fund. So this is the correct option here. The second one is hedge funds. Hedge funds are included in category 3 of the alternative investment funds. So obviously they are also included in alternative investment funds. So our correct answer here will be only 2. Fine. So even though you don't know all these two options or whether they are included in alternative investment funds or not, but after eliminating these two, at least you are in a position to tell ki at least the answer should be only 2, only 1 or what? All the 4 are eliminated and only 3 are eliminated, which means there is a 50-50 between these two options. तो कम से कम यहाँ तक तो आप पहुँच गए कि 50-50 में से आप गेस करके एक सही आंसर इवेलुएट कर सकते हैं. फाइन, बेस्ड ऑन योर वेरी कॉमन सेंस. So here the correct answer will be only 2, that is
hedge funds and venture capital funds are included in alternative investment funds. Let's move on to our next question, that is question number 2. Which of the following are the source of income for Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आय का स्रोत इनमें से कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन इज बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेकेंड वन इज बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, printing and distributing currency notes. Fine. The first thing which was there कि buying and selling of government bonds. Obviously government bonds को RBI buy and sell करती through open market operations, जो न्यूज में काफी टाइम से रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन. फाइन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. एनीवन who is preparing for examination must be knowing this is the one of the primary source of income for whom? For RBI, buying and selling of government bonds through open market operation. Our first option is correct. Second one is buying and selling of foreign currency. Yes, the second source of income for RBI is buying and selling of government foreign currency. Foreign currency. Fine. You must be knowing this is also a source of income for whom? Source of income for RBI. So, but let's assume कि you don't know, we don't know कि which of these are the income source of income for RBI. So let's see our third option. Here is pension fund management. कभी भी RBI को आपने सुना है पेंशन फंड मैनेजमेंट करते हुए, पेंशन या पेंशन फंड से डील करते हुए कभी भी आपने सुना है? ऑब्वियसली नॉट. इट डू नॉट डील विद सच थिंग्स. इट ऑलवेज द ऑर्गेनाइजेशन नेम्स EPFO, दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, डील्स विद सच थिंग्स. फाइन. RBI डू नॉट डील्स विद सच थिंग. सो थर्ड ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं. जैसे ही यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे दो ऑप्शंस हमारे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी. फाइन. विच मीन्स कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत. लेट्स सी व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज. ऑब्वियसली अगर आप प्राइवेट मतलब आपने कभी RBI को प्राइवेट कंपनी से डील करते हुए सुना है? इट डू नॉट डील्स विद प्राइवेट कंपनी, इट ऑलवेज डील्स विद कमर्शियल बैंक्स. फाइन. कमर्शियल बैंक्स को वो लेंड करती है. रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, जिस इंटरेस्ट रेट में वो पैसा लेंड करती है कमर्शियल बैंक्स को, वो इंटरेस्ट रेट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं. एंड द वाइस वर्सा कि RBI जिस इंटरेस्ट रेट में पैसा कमर्शियल बैंक से लेंगी उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं. तो ये प्राइवेट कंपनीज से कहाँ डील कर रही है? ये तो बैंक से डील कर रही है. फाइन. तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट. थर्ड एंड फोर्थ आर वेरी अंडरस्टूड ऑप्शंस. द फिफ्थ वन इज प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट. सी एज वी नो कि इट इज द ऑथोराइजर ऑफ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स इन द कंट्री. बट उससे उसका इनकम जनरेट होता है कि नहीं? लेट्स फाइंड आउट. प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स. सी अगर 500 रुपीज़ का एक नोट है, फाइन, उसे RBI प्रिंट कर रही है, उसका कॉस्टिंग सपोज 2 रुपीज़ पड़ता है, सपोज 2 रुपीज़ पड़ता है, बट द एक्चुअल फेस वैल्यू ऑफ दैट रुपीज़ इन मार्केट इज, दैट करेंसी इन मार्केट इज 500 रुपी. फाइन. सो जो डिफरेंस है 2 रुपीज़ एंड 500 रुपी के बीच, दैट इज 498 रुपीज़ का. That is the earning of, that is the source of income for whom? RBI. And this terms is called seigniorage. This term is called seigniorage. Fine. मतलब करेंसी का प्रिंटिंग वैल्यू और उसका फेस वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट अर्निंग इज कॉल्ड seigniorage. That is the source of income for whom? Source of income for RBI. तो अगर आप फिफ्थ ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट, मतलब फिफ्थ ऑप्शन अगर आपको पता है
फिफ्थ ऑप्शन ऑब्वियसली प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी। अगर आप इवेल्युएट कर लेते कि ये ऑप्शन सही है, विच मीन्स कि आपने इसका आंसर कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 एंड 5 आर करेक्ट, क्योंकि 1 और 2 तो ऑब्वियसली करेक्ट था। जैसे ही थर्ड फोर्थ को हमने एलिमिनेट किया, आइदर यू एलिमिनेट 4 फर्स्ट और थर्ड, तो दोनों केस में हमारा बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा। फाइन, तो 2 ही ऑप्शन वहां पे बच रहे, दैट इज 1 एंड 2 एंड 1, 2 एंड 5। तो 1, 2 ऑब्वियसली करेक्ट, क्योंकि बोथ ऑप्शन में 1, 2 प्रेजेंट है। सिर्फ हमें देखना था प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर आरबीआई और नॉट। फाइन, और इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. First thing you should notice here, पहला तो ये कि जब भी इस तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं, these are very extreme statement, means all the listed companies, fine। तो ये इस तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट, most of the cases they are incorrect, but still if you have read this statement carefully, you will see it is talking about RBI mandates। RBI कब से लिस्टेड कंपनीज को मैंडेट करने लगी? RBI इन चीज़ों से कब से डील करने लगी? ऑब्वियसली दे डू नॉट डील विथ एनी लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज, उससे उसको मतलब ही नहीं है। वो डील करती कमर्शियल बैंक से। लिस्टेड अनलिस्टेड की जब भी बात होती है, हमारे दिमाग में एक ही ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, दैट इज सेबी, Securities and Exchange Board of India। Those organization, this organization deals with listed companies and unlisted companies in India. These are the market regulator. This organization is the market regulator. So first statement is incorrect. Let's find out our second statement. वो क्या बोलता है? In India, a company submitting BRSR makes a disclosure in the report that are largely non-financial in nature। Fine, those report are non-financial in nature। अब सी, हमें नहीं पता है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है क्या। फाइन, बट इसमें इसके नाम में ही इसका आंसर, सेकेंड स्टेटमेंट का आंसर छिपा है। इट इज अ रिपोर्ट रिलेटेड टू बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। जब भी सस्टेनेबिलिटी की बात आएगी, हमेशा हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फाइन, इन्वायरमेंट, एथिक्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम्स इन आवर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी। तो जब सस्टेनेबिलिटी की मतलब जब कोई भी रिपोर्ट सस्टेनेबल और आपका क्या टर्म यूज किया था मैंने, सस्टेनेबल, इन्वायरमेंट, फाइन, एथिक्स, इस तरह की चीजों से कोई भी रिपोर्ट अगर डील कर रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल बी लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। इसमें क्या दो रहा है कि अगर कोई भी रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी से डील कर रहा, तो ऑब्वियसली द लार्ज पोर्शन ऑफ दोज रिपोर्ट विल बी नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फाइन, बेस्ड ऑन द लॉजिक वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। सिर्फ नाम से ही हम लोगों ने गेस किया और सॉल्व किया। लेट्स फाइंड आउट कि हमारा जो स्टेटमेंट 2 करेक्ट था कि नहीं। फाइन, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग कि हमें कुछ नहीं पता भाई कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होता क्या है, और ये कौन सी कंपनी से डील करती है और व्हाट। सो सी, एज आई टोल्ड, व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर? Fine, this is the statement here. The Reserve Bank of India, ये statement था, mandates all the companies to submit the BRSR। वो तो हमने गलत कर दिया, because it do not mandates, मतलब RBI उसे mandate नहीं करती है, SEBI does। The second thing which was there, it only mandates top 1000 listed companies। सारे कंपनीज को वो मैंडेट नहीं करती BRSR रिपोर्ट सबमिट करने का। फाइन, ओनली टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को ही
मैंडेट्स करती है, कौन? सेबी। तो ऑल वाला जो हमारा वर्ड था, स्टेटमेंट था, वो भी गलत हो गया, विच मेक्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फाइन। सेकंड स्टेटमेंट विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज submitting BRSR makes a largely non-financial disclosure. This was our statement. BRSR requires disclosure on ESG factors such as energy and water consumption, emission, waste management, employee well-being, diversity, supply chain sustainability, business ethics and grievance redressal. These disclosures are primarily qualitative and non-financial इन नेचर। सी मतलब हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट था बेस्ड ऑन दैट वर्ड ओनली, मतलब उस रिपोर्ट का सिर्फ नाम से ही हमने इवैल्यूएट कर लिया कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द सेकंड स्टेटमेंट। आवर सेकंड स्टेटमेंट वाज ओनली करेक्ट हियर। फाइन। सो BRSR आर रिपोर्ट which are largely non-financial in nature and they deal with environmental, social and governance status of the company। मतलब SEBI direct them to submit their BRSR report to top 1000 listed companies। Fine. So here the correct answer will be option number B। Fine. So let's move on to our next question. Next question is question number 5. Statement 1, in India income from allied। This question was covered in our agriculture related question related to which appears in the UPSC examination। Fine. Our next question is question number 7. As regards returns from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholders। This is our statement number 1। The second statement, bondholders are lenders to a company whereas stockholders are its owners। बॉन्ड होल्डर जो है वो लेंडर्स है कंपनी के, जबकि स्टॉक होल्डर्स जो है वो ओनर्स होते हैं। ऑब्वियसली बॉन्ड होल्डर्स जो है वो बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनीज को पैसा देते हैं इन रिटर्न ऑफ बॉन्ड। फाइन। और उसे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल के रूप में रीपेमेंट मिलती है। फाइन। एंड देयर इज अ फिक्स रिटर्न टू इट। बॉन्ड होल्डर्स को फिक्स रिटर्न मिलती है। फाइन। सो उन्हें मतलब नहीं होता कंपनी आइदर ग्रो कर रही या लॉस कर रही, बट स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ऑनर्स, दे आर लेंडर्स। ऑब्वियसली दे आर लेंडर्स। वो पैसा लेंड किए भाई, उनको उनका रिटर्न मिल रहा, बस उसी से उसको मतलब है फिक्स रिटर्न मिल रहा। बट स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ऑनर्स मीन्स कि अगर कोई बंदा 5% स्टॉक खरीदता है कंपनी का, विच मीन्स दैट पर्टिकुलर गाय इज द 5% ऑनर of that particular company। Yes। Fine. So this statement is obviously correct। The third statement, for repayment purpose bondholders are prioritized over stockholders by a company। Fine। bondholders को कोई मतलब नहीं है, कंपनी लॉस करे प्रॉफिट करे उसे उसका फिक्स्ड रिटर्न मिलते रहना चाहिए। और इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज की जाती है एज फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न्ड। ऐसा नहीं कि पहले स्टॉक होल्डर्स को पैसे दे दिए जाएंगे तब बॉन्ड होल्डर्स को। ऑब्वियसली बॉन्ड होल्डर्स विल बी इन अ अपर पोजीशन एज फार एज रीपेमेंट इज कंसर्न। फाइन। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो पहला जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी किन्हें? बॉन्ड होल्डर्स, उसके बाद फिर स्टॉक होल्डर। फाइन। बिकॉज स्टॉक होल्डर्स जो है या कंपनी अगर ऊपर जाएगी तो वो ज़्यादा अर्न करेंगे, ज़्यादा रिटर्न अर्न करेंगे, नीचे आएगी तो कम करेंगे, विच मीन्स इट इज अ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न गेम। इट इज अ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न गेम। फाइन।
सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो फॉर रिपेमेंट पर्पस ऑब्वियसली करेक्ट हो जाता है कि पहला जो बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, सेकंड में फिर स्टॉक होल्डर्स आते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, बॉन्ड होल्डर्स एंड आर लेंडर्स टू अ कंपनी, ऑब्वियसली लेंडर्स, वो पैसे दिए, फाइन, तो दे आर लेंडर्स। स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स, बिल्कुल 5% स्टेक खरीदा है तो वो बंदा 5% ओनरशिप रखता है उस कंपनी की, फाइन, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा था, वॉच इज वेरी केयरफुली, एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क दैन स्टॉक होल्डर्स। ये हमारा स्टेटमेंट है कि जो बॉन्ड होल्डर्स है वो एक बेटर पोजीशन में होते हैं, मतलब उनके लिए रिस्क कम होता है एज कंपेयर टू द स्टॉक होल्डर। तो अब स्टेटमेंट 3 को आप ध्यान से पढ़िए, फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो दिस इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 भी हमारा सही होना चाहिए अगर ये स्टेटमेंट 3 सही है, बिकॉज इट इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, फाइन। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी, कंपनी के लिए लेंडर्स है, वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स, फाइन। तो अब जो लेंडर है, अब कंपनी कोई भी सपोज कंपनी है, अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जाती है तो जो लोगों ने उस कंपनी को उधार दिया है उनके लिए क्या है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपना पैसा से मतलब कि भाई मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। बट अगर ओनर्स की बात करें तो खतरा उन पे है, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर लॉस करे कंपनी तो ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो बी ऑल्सो फेसिंग लॉस, फाइन। सो बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट वी कैन से कि बॉन्ड होल्डर जो है वो रिलेटिवली कम रिस्क में रहते हैं एज फार फ्रॉम कंपैरिजन टू whom, कंपैरिजन टू स्टॉक होल्डर, फाइन। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सी यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या है, पहला तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, ये एलिमिनेट हो गया जैसे ही 2 स्टेटमेंट को हमने इवेलुएट किया। थर्ड वन इज द लास्ट वन इज नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 2। एक्सप्लेन 1 जो है इसके बेस में हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी का बॉन्ड होल्डर जो है वो कम रिस्क में रहता है कंपैरिजन टू स्टॉक होल्डर्स, तो बेस्ड ऑन दिस बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयरएज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मतलब ये इस स्टेटमेंट के बुनियाद पे ये स्टेटमेंट हम वेरीफाई नहीं कर सकते, फाइन। सो फॉर दैट रीज़न ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, थर्ड को ले लो या सेकंड को ले लो, दोनों में से कुछ भी, स्टेटमेंट 1, ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। और यही ऑप्शन इन क्वेश्चंस को वेरी ट्रिकी बनाती है। अगर आप लोग स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट, बिकॉज तीनों ऑप्शन अगर आपने सही भी कर लिया और अगर इस स्टेटमेंट पे चकमा खा गए तो फिर बेकार हो गया, चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। तो द थिंग हियर इज बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट because they are both of them explains statement 1, दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे, that's why they are correct, fine, this statement is correct, that is option number A is the correct answer here. This was a very good question, but you just need to focus and read carefully each of the statement, fine. Next question number 8. You guys just go through this statement once, I'll be right back, fine.
Fine. So the consider the following statement: India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. अब यहाँ पे पता है क्या करेंगे? If you are very impatient, फाइन, तो आप लोग क्या करेंगे, ये ऑल वाला स्टेटमेंट करके देख के ये स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर देंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू कि आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्टेटमेंट्स गलत होते हैं. नॉट ऑल द टाइम, आई हैव नेवर यूज दिस वर्ड कि ऑल द टाइम. फाइन, ऑल, if you see such extreme statements, do not mark those incorrect immediately. पहले पूरा ऑप्शंस आप पढ़ ले केयरफुली कि हाँ भाई 1 गलत हुआ तो 1 1 1 ये तीनों गलत हो गया, तो विच मीन्स 2 and 3 आर करेक्ट. अरे भाई आगे भी तो पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे का स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है. इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. अब इंडिया के स्टॉक मार्केट जो बढ़ रहा है वो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन वो हांगकांग को ओवरटेक किया कि नहीं, ये बहुत फैक्चुअल नॉलेज है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी इसे सही या गलत आप करार देंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग. पहले सारा स्टेटमेंट केयरफुली पढ़िए. द थर्ड स्टेटमेंट इज देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट, और एक्ट का भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब वार्निंग की बात नहीं हो रही है, और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड. देयर इज नो, ऐसा हो सकता है कि आप ही बताइए कि अगर इंडिया जो है इतना बड़ा मार्केट है, स्टॉक मार्केट इंडिया का इतना बड़ा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी. कैसे हो सकता है? देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी. यहीं पे तो ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर मिल गया. इनकरेक्ट. देयर इज ऑब्वियसली अ रेगुलेटरी बॉडी कॉल्ड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. वही तो काम है उसका. तो ये ऑप्शन सही कैसे हुआ? दिस इज इनकरेक्ट. एंड एज सून एज यू मार्क दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट, दिस मार्क दिस ऑप्शन इनकरेक्ट, सी आपका ऐसे ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. फाइन, विच मीन्स these 2 options are correct. These 2 options are correct. Fine. So let's see the explanation of this question. So the explanation, let's go to the explanation of this question. Fine. Next. See, this was our first statement. India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. Fine. India particularly via, this was the correct option, via the National Stock Exchange consistently ranks among the top globally in equity option trading volumes. Fine. This reflects a booming derivative segment within the Indian financial market. The second one is India's stock market has grown rapidly. इसे भी हमने देखा कि this statement becomes automatically correct because India market capitalization has witnessed substantial growth in recent years. India did surpass Hong Kong in market cap ranking during 2023-2024, indicating robust equity market growth. Fine. And there is finally third statement, which means there is no regulatory body. Obviously not. SEBI is there, as I told. SEBI is obviously there and will be there. SEBI actively issue investor advisor, monitors option trading risk and cracks down on unregistered investment advisor and fraudulent practices. Fine. So which means कि हमारा जो क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका था वो एब्सोल्युटली करेक्ट था. फाइन, विच मेक्स इट अ करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? 1 and 2 ओनली. ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी इज देयर, तीनों में 3 ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज प्रेजेंट. फाइन. तो एंड देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी कॉल्ड सेबी. That's it for this question. Let's move on to our next question. Fine. Circular economy.
So consider the following statement. Statement 1, circular economy reduces the emission of greenhouse gases. This is our statement. Second one is circular economy reduces the use of raw materials as inputs. Fine. Third one is circular economy reduces wastage in the production processes. So first of all, you need to know what is circular economy. Circular economy is based on the concept of 4 R's. You must have heard about it. It is based on the concept of 4 R's, that is, first reduce, reuse, recycle and recover. These are the 4 R's, and this is a loop. Circular economy means circulating, economy in circulation. Fine. That is reduce, reuse, recycle and recover, and then again reduce, reuse, recycle and recover. This is a loop. Fine. So our first statement is circular economy reduces the emission of greenhouse gases. Fine. So even you don't know what is the concept of circular economy, and see, सर्कुलर इकोनॉमी का अगर आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है तो स्टिल यू कैन सी कि सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही. सर्कुलर मीन्स राउंड, फाइन. इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, फाइन. मतलब कोई भी ऐसा इकोनॉमी जो सर्कुलर हो, मतलब जो रोटेटिंग हो और सस्टेनेबल हो. ऑब्वियसली सस्टेनेबल, सर्कुलर तभी होंगी जब वो सस्टेनेबल होगी. फाइन. तो ऑब्वियसली इस वर्ड से ही आप डिराइव कर सकते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. ऑल्दो इट इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट. द 4 R's आर द वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट when it comes to economy and sustainable development. So the first statement here is circular economy reduces the emission of greenhouse gases. See, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट, you are reducing the use of प्लास्टिक का प्रोडक्ट and you are reusing that प्लास्टिक का प्रोडक्ट. मतलब एक तो आप ऐसे ही कम यूज कर रहे, पर अगर कम भी कर रहे, बस थोड़ा बहुत भी कर रहे उस प्लास्टिक का यूज, तो उसे बार बार कर रहे, मतलब उसे तुरंत फेंक नहीं दे रहे. फाइन. एंड देन जब भी फेंक रहे उसे तो एक प्रॉपर रिसाइकल के रूप में उसे, मतलब फिर से रिसाइकल कर रहे, रिसाइकल करके फिर से उसे रीयूज में ला रहे, रिकवर कर रहे एंड देन फिर से रीयूज में ला रहे. फाइन. तो अगर ये प्रोसेस काम करेंगी तो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन. ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ बार बार सस्टेनेबल मॉडल होता ही क्या कि बार बार उसे यूज़ की जाए, सस्टेनेबली यूज़ की जाए. फाइन. उसका जो वेस्ट है उससे भी वापस से यूज़ में लाया जाए, उससे भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाए और फिर से उसे यूज़ किया जाए, ना कि उसे फेंक दी जाए ताकि उससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो, जलाया जाए ताकि ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. यस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Second statement, circular economy reduces the use of raw materials as inputs. अगर आप कोई भी चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे, ठीक है, उसे रिसाइकल कर रहे, फाइन, रिसाइकल कर रहे और रिड्यूस कर रहे, मतलब उसका जो यूज़ है उसे रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट इन द रॉ मटेरियल, मतलब उसके प्रोडक्शन में अफेक्ट पड़ेगा. क्यों पड़ेगा? ऑब्वियसली अगर आप कोई भी मटेरियल को बार बार रीयूज़ कीजिएगा, उसे बार बार सस्टेनेबली उसे साइकिल में, एक साइकिल से गुजारिएगा, रिसाइकल कीजिएगा, तो उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो रिड्यूस होगा ना भाई. ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, क्यों नहीं होगा. फाइन. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी जनरल स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 3, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर प्रोडक्शन ही कम होगी तो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस से जो वेस्ट निकलेगा वो भी तो कम होगा. ऑब्वियसली कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि वही एक ही चीज़ को हम लोग बार बार यूज़ कर रहे. फाइन. उसका मतलब जहाँ तक यूज़ हो सके वो कर रहे, उसका
जितना यूज पहले किया जाता था उससे हमने कम कर दिया। प्लास्टिक का मान लीजिए पहले ज्यादा यूज होता था, अभी हम लोग कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस विल अफेक्ट इन द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उससे जो वेस्ट निकलती है प्रोडक्शन प्रोसेस से, उसमें भी इंपैक्ट करेगा, ऑब्वियसली इंपैक्ट करेगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ये थोड़ा ऐसे, ये भी जनरल स्टेटमेंट है, बट स्टिल ये थोड़ा इनडायरेक्टली रिलेट करने वाली चीज है कि कैसे आप उस मॉडल को इनसे रिलेट करते हैं कि मतलब उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली दिस थ्री आर इंपैक्ट्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। इंपैक्ट ही है ना, और क्या है। तो दिस थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द स्टेटमेंट्स, द ऑप्शंस, which makes it a very tricky. That is, both statement 2 and statement 1 are correct and both of them explain statement 1. ये पहला ऑप्शन है हमारा, कि हमारा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एंड बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर एक्सप्लेनिंग वेल द स्टेटमेंट नंबर 1. लेट्स सी, पहला सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी, जस्ट अ सेकेंड। Circular economy reduces the use of raw materials as inputs. ये करेक्ट है हमारा, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। यहाँ से नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है वो ये है कि ये जो यूज, पहला तो स्टेटमेंट ये हो गया कि रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स, ठीक है, फैक्ट है। अब ये स्टेटमेंट भी हम आते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब आप एक बात बताइए कि रॉ मटेरियल का अगर यूज कम होता है तो फाइनली मतलब ऑब्वियसली कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा। रॉ मटेरियल कम यूज हो रहा, फाइन, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन कम हो रहा, प्रोडक्शन कम हो रहा, प्रोडक्शन कम हो रहा, मतलब क्या हुआ, उसका एमिशन मतलब ग्रीन हाउस एमिशन कम हो रहा। ऑब्वियसली उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ रहा ना। इनडायरेक्ट क्या, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अगर रॉ मटेरियल एज इनपुट्स को कम किया जाता है सर्कुलर इकोनॉमी में, अगर रॉ मटेरियल इनपुट्स में कम हो जाते तो उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट ये होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो जाएगा। ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा, फाइन। तो पहला तो स्टेटमेंट तो यहीं से हमको समझ में आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है आगे, बट स्टिल विल गो थ्रू ईच ऑफ द ऑप्शन। पहला तो ये देखें हम लोग कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट जो है मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस का वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, होता है ऑब्वियसली। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर वेस्ट जो है रिड्यूस होगा, फाइन, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वेस्ट रिड्यूस अगर हो रहा है, दैट मीन्स कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम हो रहा है ना भाई। प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर वेस्ट का कम होना मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन में कमी आना, ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, इन्वायरमेंट में ही तो पड़ेगा, फाइन। सो दैट मीन्स कि और स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट कर रहा है कि नहीं, एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं, ऑब्वियसली कर रही है। तो आगे जाके इसे पढ़ के फिर कंफ्यूज होने का क्या मतलब है, जब यहीं पे आंसर आपका मतलब आंसर आपको मिल जा रहा, तो आगे अगर आप पढ़िएगा तो हो सकता है ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइए, फाइन। सो इफ़ यू आर वेल एंड इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ओनली, तो आगे पढ़ने का क्या लॉजिक है, बट स्टिल विल गो थ्रू। Both statement 2 and statement 3 are correct, but only one of them explain statement 1 incorrect. Both of them are explaining statement 1. Only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1. पहला only one of the statement 2 and 3 दोनों सही है ना भाई, एक थोड़ी सही है, तो यहीं पे गलत हो गया। नाइदर वाला चीज़ तो काट ही देना है, फिर तीनों स्टेटमेंट सही है तो नाइदर वाला पढ़ना ही क्यों। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल रिसीट। Capital receipt create a liability or cause a reduction in the asset of the government. This is our statement. Second one is borrowing and disinvestment capital receipt or capital receipt. Interest received on loans create a liability of the government. These are the three statements over here. Capital receipt.
capital receipt are non recoverable. Fine, these are capital receipt. कैपिटल रिसिप्ट कब होता है? फाइन, कैपिटल रिसिप्ट किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है? दे आर नॉट ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल रिसिप्ट कब होती है? जब भी कोई गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेक, कंपनी की स्टेक जो उसे बेचती है प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेटाइजेशन, इट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, एक्चुअली इट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या अंतर है? डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसमें 50% से ज़्यादा स्टेक जो है स्टिल गवर्नमेंट के पास होती है। फाइन, उसमें मतलब 50% से ज़्यादा स्टेक आर स्टिल प्रेजेंट इन किसके पास? गवर्नमेंट के पास। और प्राइवेटाइजेशन में क्या आती है कि मोर देन 50% ऑफ द स्टेक इज सोल्ड टू द प्राइवेट कंपनीज। तो अब आप बताइए एक चीज़ कि जब भी गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगी, अगर वो कोई भी प्राइवेटाइजेशन करती है, ठीक है, मीन्स प्राइवेटाइजेशन और इट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं इसको, प्राइवेटाइजेशन, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड प्राइवेटाइजेशन हियर, इट डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो साथ में जो एसेट है वो भी तो कंपनी को बेच रही ना, एक तरह से वो भी कंपनी को बेच रही है। फाइन, कुछ एसेट्स ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट कंपनीज के पास चले जाएंगे। तो अब हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फाइन, स्टेक के साथ एसेट भी तो जाएंगी, स्टेक तो जा ही रहा ऑब्वियसली। अब कोई भी कंपनी का खरीद रहा है स्टेक, तो ऑब्वियसली देयर बी ऑल्सो ये मतलब स्टेक के साथ वो एसेट भी करेंगे, कंज्यूम करेंगे, कौन? प्राइवेट कंपनी। इसे ही तो बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, इसे ही तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फाइन, सो कैपिटल रिसीट, अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लायबिलिटी कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, क्रिएट अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बताया मैंने? एसेट ऑब्वियसली कम होगा ना, डिसइन्वेस्टमेंट में एसेट भी तो कम होगा। फाइन, सो ये तो पहला ये चीज हो गया, कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे बनाती? इट इज आइदर डिसइन्वेस्टमेंट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। जब भी गवर्नमेंट पैसे लेती है, ठीक है, अगर जब भी गवर्नमेंट पैसे लेती है मार्केट से, तो वो लायबिलिटी होती है, किन के ऊपर होती है? गवर्नमेंट के ऊपर। तो ऑब्वियसली कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लायबिलिटी भी तो बनाती है। और द कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। फाइन, करेक्ट। फर्स्ट तो हमारा ऐसे ही करेक्ट हो गया। सेकेंड वन इज सेकेंड, बोरोइंग्स एंड द डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट। ये तो फीचर्स ही है कैपिटल रिसीट का। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट, दीज आर द टाइप ऑफ कैपिटल रिसीट ऑब्वियसली। तो 1 और 2 तो हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड वन देखते, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये बताइए कि हर चीज को भूल जाते हैं, ठीक है, लीव एवरीथिंग अपार्ट, just focus on this statement, interest received on loans create a liability of the government। इंटरेस्ट रिसीव्ड किसके? लोन्स, जो गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट लोन्स दी है, उस पर अगर इंटरेस्ट उसका रिसीव हो रहा, फाइन, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी कैसे होगी? लोन्स जो है वो मतलब लोन्स जो है लायबिलिटी हुई ना। फाइन, लोन्स का जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट आ रहा, फाइन, इंटरेस्ट जो आ रहा वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी कैसे हुई? तो एज अ जनरल स्टेटमेंट ये क्या समझ में आ रहा आपको? ये दिस इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लायबिलिटी कैसे होगा? लायबिलिटी हो ही नहीं सकता। थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप ये दोनों छोड़ भी दे, तो थर्ड स्टेटमेंट को एज सून एज यू एलिमिनेट, बट इन अ मोस्ट लॉजिकल वे, आपको पता होना चाहिए आप किस लॉजिक के तहत इसे एलिमिनेट कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट है जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि वो अगर आप इमीडिएटली अगर उस पर एक्ट कर जाओगे तो वो गलत हो जाएंगे। फाइन, सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो लेट्स सी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। दीज बोथ कम्स अंडर गवर्नमेंट रिसीट्स। फाइन, government receipt, as I told,
revenue received do not create liability or reduce asset, that is tax, income tax, interest, fees. These are the example of revenue receipt, capital receipt. Create a liability or reduce government asset. This is the definition of capital receipt. Reduce a, create a liability or reduce government asset, that is borrowings, disinvestment proceeds. Fine. Our first statement was correct, obviously. Let's see our third statement. Second statement was also correct. Selling stake in the public sector undertakings which reduces the government asset holdings. Third one is, this contradicts the definition of capital receipt. This contradicts the definition of capital receipt. Capital receipts must either create liability, reduce asset, fine, and the interest of the loans which the government is receiving is not a liability of the government, is not a liability of the government, fine. So here the correct answer will be what? Option number A. 1 and 2 are the correct option. Next question is question number 35, I guess. Fine. Which one of the following launched the Nature Solution Finance Hub for Asia and Pacific? This is a kind of report. Fine. Which one of the following is launched the Nature Solution Finance Hub for Asia and Pacific? See, unless and until you are very confident about this type of questions, do not attempt this question, because these are very factual questions. इसमें आप एलिमिनेट कहाँ करोगे? 4 ऑप्शन ही है, इसमें से आपको एक ऑप्शन को सही या गलत करार देना है, जो भी इसमें करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज. तो इसमें एलिमिनेशन का ऑप्शन ही नहीं रहता. तो जब तक आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं पता हो, यू डू नॉट गो थ्रू सच क्वेश्चन, मतलब वो टैकल नहीं करे आप, ठीक है. इसमें क्या है, एक चीज़ है नोटिस करने वाला कि एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है. अब आप एशिया को देख के अगर आप मार्क करने का ये सोच रहे द एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो देयर इज वन मोर बैंक कॉल्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों दिया हुआ है, ताकि आप अगर अटेम्प्ट लेते, अगर आप वेरी कॉन्फिडेंट है कि ये दोनों बैंक से ही में से ही कोई है तो वेल एंड गुड. बट अगर आप गेस कर रहे सिर्फ, तो या तो चारों में से कोई भी सही हो सकता है, या तो आपको कंफ्यूज करने के लिए या एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दिया हुआ है. सो इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन, जो करेक्ट आंसर है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है. दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एट COP 28. दैट वाज इन दुबई. COP 28 कहाँ हुआ था? दुबई में. The Nature Solution Finance Hub for Asia and the Pacific was launched by whom? Asian Development Bank. It was launched at COP 28, and the primary aim of ADB was to attract at least 2 billion into investment programs that incorporate nature-based solution. Nature-based solution. Fine. So this was very factual question. Let's move on to our next question, that is question number what? 66, I guess. Fine. 66. Which of the following statement with regard to recommendation of 15th Finance Commission of India are correct? 15th Finance Commission से क्वेश्चन है. Let's see our first statement. It has recommended grants of 4,800 crores from the year 2022 to 23 to the year 25 to 26 for the incentivizing the states to enhance educational outcomes. Fine. So पहला चीज तो ये I have told many times कि UPSC do not play such cards, such big number cards. फाइन. जैसे 4800, अगर 48 5000 करोड़ होता है या 500 करोड़ होता तो डज इट मैटर? और क्या हमें ये चीज़ याद रह सकती है? ऑब्वियसली नॉट.
UPSC do not play such big number game cards. Fine. So आपको इस केस में अज्यूम करना है बेस्ड ऑन दिस कि ये जो 4800 करोड़ है ये सही है. इसकी इस स्टेटमेंट इस नंबर के बेस पे आपको कोई कॉल नहीं लेना है. यू जस्ट हैव टू अज्यूम कि दिस बिग नंबर इज करेक्ट फिगर विच हैज गिवन बाय यूपीएससी. द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे नोटिस करने वाली ये थी 20 इसका टर्म 15 फिनांस कमीशन का जो टर्म फिर 2022-23 टू द ईयर 2025 to 26 फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू एनहांस एजुकेशनल आउटकम्स. फाइन. लेट्स सी सेकंड स्टेटमेंट. Second statement is 45% of net proceeds of union taxes are be shared with states. 45%. अब सेम थिंग हेयर कि आपको जो याद यहाँ पे रखना था वो एक ही चीज था, जो ये था कि 15 फिनांस कमीशन का जो रिकमेंडेशन जो है वो है 41% ना कि 45%. फाइन. अगेन आई एम नॉट टेलिंग कि इट इज प्लेइंग नंबर कार्ड्स हियर बिकॉज ये जो है ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही था 15 फिनांस कमीशन का. फाइन. 15 फिनांस कमीशन की ये बेसिक कॉन्सेप्ट थी. दैट इज 41% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड बाय whom? Shared by states. Fine. And this was covered in our DCA news. Let me show you. 16th Finance Commission. This was covered in our daily current affairs initiative, daily current affairs news. You can see here 16th Finance Commission. This news is about 16th Finance Commission under Chairman Arvind Pangaria is navigating a politically and fiscally sensitive landscape as it prepares recommendation for the financial year 26 to 31 with an October 31, 2025 deadline. A central theme of this consultation has been states' demand for a higher share in central tax devolution currently pegged at 41%. यहीं पे मेंशन किया हुआ था, आपको आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं था. फाइन. यहीं पे मेंशन किया हुआ था कि शेयर कितना है 41%. हालांकि अभी जो मांग की जा रही है 16 कमीशन में वो 50% तक की शेयर की डिमांड की जा रही है बाय द स्टेट्स, स्पेशली बाय नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स. यू कैन सी हेयर कि बीजेपी रूल्ड स्टेट लाइक एमपी एंड उड़ीसा हैव proposed 48 to 50%. Congress ruled and India bloc state strongly advocates 50% and the average was 45 to 50%. Fine. So this was the news which was thoroughly covered on our DCA, that is Daily Current Affairs Initiative on April 14, 2025. Fine. So based on that particular information, this was the very basic information that the net proceed of union taxes which are to be shared by the state with state were not 45% but it was 41%. 41%. So as soon as you mark this second option incorrect, see all the three options got eliminated automatically. That is option C becomes our correct answer here. Fine. See how tricky the questions were of this UPSC prelims examination of 2025. Fine. Let's move on to our next question. That is question number 67. Fine. Question number 67. Consider the following statement in respect to International Bank for Reconstruction and Development IBRD. It provides loans and guarantees to middle income countries. Let's assume it works single-handedly to help developing countries to reduce poverty. It was established to help Europe rebuild after World War II. See, जैसे ही कि हमने सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ा, you must notice one thing. It works single-handedly. These are two extreme statements. Too extreme.
सिंगल हैंडेडली, ऐसा कोई हो सकता है कि पूरा मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल हैंडेडली काम कर रहा हो पूरे वर्ल्ड में, नॉट इवन इन द कंट्री, पूरे वर्ल्ड में, टू एलिमिनेट पॉवर्टी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज? अरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है भाई, IMF इज देयर, वर्ल्ड बैंक इज देयर, समवेयर यूनेस्को इज देयर, यूनिसेफ इज देयर। अल्टीमेटली गोल तो यही है सबका, टू प्रोवाइड फंड टू कम्बैट रिड्यूस पॉवर्टी, फाइन। और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ही काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, फाइन। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी एक्सट्रीम इन नेचर, दीज आर टू एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट सिंगल हैंडेडली देखते ही पहले तो आपको यहाँ पे पेन चलाना था कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, फाइन, विच मेक्स द करेक्ट आंसर है सी। 2 को एलिमिनेट करके देखते पहले हम लोग क्या होता है, 2 देखिए 2 जैसे एलिमिनेट हुआ ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर जो है 1 और 3। अब वहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग यहाँ पे ये करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इट्स प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज। मिडिल इनकम, मिडिल क्यों, सबके लिए करते होंगे ऑब्वियसली, सबके लिए, ऐसे बोल के फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर दिया। इसमें क्या हो गया, गलत आंसर मार्क करके चला है और कॉन्फिडेंट है कि हमने सही आंसर मार्क किया। बट नेवर डू सच थिंग्स अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, डोंट टेक दोज रिस्क, फाइन। दीज आर द extreme statements based on which we have marked this option incorrect, fine, कि these are very general thing कि कोई भी सिंगल हैंडेडली कैसे कर सकता काम। तो जैसे ही हमने सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट किया, सी ऑप्शन, द करेक्ट आंसर अपीयर्स इटसेल्फ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग this particular organization, that is International Bank for Reconstruction and Development. It was actually established in Bretton Woods conference, fine, in somewhere around 1948 or something. Let's see. See, IBRD is one of the 5 institutions. There are 5 institutions of World Bank Group. It primarily provides loan guarantees and technical assistance to middle income and credit worthy low income countries. Fine. This was our first statement. The second statement, it focus on financial development. Everything is there. Health, education. Yeah. Second statement was कि single handedly वाली चीज, single handedly, fine, single handedly. IBRD works in a coordination with other World Bank Group institution, include IDA, that is International Development Association for the Poorest Country, IFC is there, for International Finance Corporation for Private Sector Development, MIG, and ICSID is there for investment guarantees and dispute resolution. Hence this statement 2 was or incorrect, fine. Statement 2 was correct and statement 3 is correct because it was established in 1944, not 1948, sorry, it was established in 1944 during the Bretton Woods conference, as I told. And Bretton Woods conference के बाद 2 ऑर्गेनाइजेशन और भी बनी थी, that is IMF and World Bank, fine. So this was general information for you. Let's go back to our question, that is question number what? Question number 68. Consider the following statement in respect to RTGS and NEFT. RTGS and NEFT. In RTGS, the settlement time is instantaneous, while in case of NEFT, it takes some time to settle payments. Fine. अब एक बात बताइए, what is the full form of RTGS here? What is the full form of RTGS? RTGS means real time gross settlement. NEFT means National Electronic Fund Transfer. अब जिसके नाम में ही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो, उसका सेटलमेंट जो इंस्टेंट ही होगा, ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस. दो सेटलमेंट्स आर इंस्टेंटेनियस इन नेचर. जिसके नाम में ही रियल टाइम छुपा हो, उसका जो सेटलमेंट होगा ऑब्वियसली इन रियल टाइम होगा. That is what RTGS is known for.
for its real time gross settlement. Fine. While in case of NEFT, it takes some time for settle. Here, it takes some time. The settlement is done in batches of 30 minutes. The settlement is done in the batches of 30 minutes. So our first statement was correct. The second statement here is in RTGS, the customer is charged for inward transaction, while that is not in the case of NEFT. अब एक बात बताइए आप, इनवर्ड ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है. अगर आप किसी को पैसा भेजते हैं, फाइन, मान लीजिए आप 1 लाख का किसी को RTGS किए, अब उसके अकाउंट में जैसे ही पैसा पहुंचा, उसके अकाउंट से 5000 डिडक्ट हो जाता है इन द नेम ऑफ RTGS फी. ऐसा हो सकता है क्या? पहला चीज तो ये कि देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ फीस. फाइन, ऐसा कोई फी है नहीं. सेकेंड थिंग, अगर वो पैसा डिडक्ट होगा तो वो आउटवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए होगा, नॉट इनवर्ड ट्रांजेक्शन. अब जिसके अकाउंट में जो बेनिफिशियरी है, जिसके अकाउंट में पैसा गया है, उससे कैसे डिडक्ट हो सकता है पैसा? फाइन. सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी, इट इज नॉट एट ऑल फैक्चुअल और लॉजिकल. फाइन, कि जिसको आप पैसा भेज रहे हो उसके अकाउंट से जो फी है, जो चार्जेस है, फाइन, वो डिडक्ट हो रही है. अगर चार्जेस डिडक्ट होंगी तो जो पैसा भेज रहे हैं उनके अकाउंट से होगी, ना कि बेनिफिशियरी के अकाउंट से. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट. फाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट वाज करेक्ट. लेट्स सी आवर थर्ड स्टेटमेंट. ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रेस्ट्रिक्टेड on certain days, while this is not true for NEFT. See, RTGS और NEFT की जहाँ तक बात है, they are available 24/7 into 365 days, and same for the NEFT as well, 24/7 into 365 days. Fine, there are not any operating hours. Operating hours की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो नेट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है. फिर तो ब्रांच बैंकिंग में ही हम लोग आ जाएंगे कि जो टाइमिंग है ब्रांच का उतना ही में ये ऑपरेशंस होंगी, बाकी टाइम जो है यू कैन नॉट डू RTGS एंड NEFT. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग. फाइन, तो इसका तो कॉन्सेप्ट ही, तो ऑपरेटिंग आवर्स RTGS के लिए रेस्ट्रिक्टेड तो है ही नहीं, और सर्टेन डेज ऐसा कोई नॉर्म्स है ही नहीं, मैं तो नहीं जानता. फाइन, देयर इज नथिंग like it is restricted on certain days. They are available 24/7 into 365 days, unless and until there is a maintenance work going on in the company's site. Company's site पे maintenance work अगर नहीं चल रही, unless and until नहीं चल रही, तो there is no norms कि it is restricted on certain days. इट इज़ रिटन ओवर है कि सर्टेन डेज तो होता ही नहीं, ऐसा कुछ नॉर्म्स ही नहीं. इनकरेक्ट. फाइन, सो आवर करेक्ट आंसर हियर विल बी व्हाट? दिस वाज आल्सो इनकरेक्ट. द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज ओनली करेक्ट, व्हिच मींस आवर वन ओनली स्टेटमेंट वन ओनली इज द करेक्ट आंसर हियर. फाइन. So let's move on to our next question, and today's last question, that is, consider the following countries: United States, United Arab Emirates, that is UAE, France, Germany, Singapore, Bangladesh. How many countries amongst the above are there other than India where international merchant payments are accepted under UPI? मतलब कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है इसमें जिसमें UPI एक्सेप्ट की जाती है? दिस इज द क्वेश्चन. तो फर्स्ट वन इज व्हाट? UAE की जाती, फ्रांस बिल्कुल की जाती, जर्मनी इनकरेक्ट, सिंगापुर यस, सिंगापुर में की जाती, देन देयर इज बांग्लादेश इनकरेक्ट. ओनली 3 ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट. वी हैव कवर्ड दिस न्यूज इन आवर आर्टिकल ऑल्सो. फाइन, कि UPI में मतलब कौन कौन सी कंट्री UPI का यूज कर रही एंड कौन कौन सी कंट्री रुपए का यूज कर रही. दिस वाज देयर इन आवर blog. Let me show you. Fine, let me show you that particular thing. This was a blog related to UPI. Fine, so countries which are currently using UPI. So first one, UAE was there, Singapore was there, Bhutan, Nepal,
Sri Lanka, France was there, and then there is Mauritius. There are total 7 countries. Fine. Countries which are currently using rupee: Bhutan, Singapore, UAE, Sri Lanka, Nepal, Mauritius and Maldives. Here is also 7 countries. तो आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यूपीआई की बात हो रही कि रुपए की बात हो रही? फाइन, जब भी आपको ऑप्शन में फ्रांस दिखेगा, as soon as you notice France in the option, समझ जाना कि वो जो कंट्रीज की बात हो रही है वो है यूपीआई. यूपीआई में 7 कंट्रीज है जिसमें एक फ्रांस भी है, एंड दीज 6 कंट्रीज आर ऑल्सो कॉमन हेयर, बट ओनली वन इज नॉट देयर, दैट इज फ्रांस. उसके जगह क्या है? मालदीव्स है. मालदीव्स. तो अगर मालदीव्स आ जाता है ऑप्शन में, विच मीन्स कि ये रुपए की बात चल रही है, रुपए की बात चल रही. तो हियर द करेक्ट आंसर इज व्हाट? UAE was there, Singapore was there and France was there. Fine. So the correct answer is what? Option number B. Only 3 of the above option are correct. That is UAE, France and Singapore. Germany is not there. Bangladesh is also not there. Fine. So that's it for today's session. Hope you guys like the video. If you like the videos, please do subscribe our YouTube channel. Follow us on Telegram as well for daily updates. Thank you so much.